Hello and welcome back to the sixth lecture of the law of evidence. Till date we have studied about the basic terminology relating to the law of evidence. We have studied about the section 5, 6, 7, 8, 9 and 11. The section number 10 was missing and in this lecture we are going to cover it. Section number 10 forms a very huge part of your examination as 20 marks question has been asked and repetitively it has been asked 2016, 2017, 2018, 19. Every time 20 marks question has been asked from section number 10. That's why I have prepared a separate sheet and completely dedicated lecture for section number 10. In this lecture we would be dealing with section number 10, its objective, scope, ingredients, relevant case, difference between the English law and Indian law, and the PYQs. The most important is PYQs because questions are being asked repetitively in your examination. So let's start with having a reading of section number 10. Section number 10 states that things said or done by a conspirator आप ये याद रखिएगा कि 120A जहाँ पे भी कॉन्स्पिरेसी की बात होगी सेक्शन नंबर 10 जहाँ पे भी हम लोग मेंशन करेंगे हम लोग क्या मेंशन करेंगे 120A ऑफ आईपीसी हम लोग को मेंशन करना है क्योंकि 120A ऑफ आईपीसी क्या कहता है वो कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन दे बोलता है कि व्हेन टू और मोर पर्सन conspire or agrees to do an illegal thing or an illegal thing by illegal means is said to have done a conspiracy. आपको ये सेक्शन 120A मेंशन करना पड़ेगा आपके आंसर्स में. So reading section number 10 here. Things said or done by a conspirator about a common design. यहाँ पे क्या वर्ड है common design की बात ये कर रहे हैं ठीक है. There is a reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together to commit an offense or an actionable wrong. Actionable wrong का मतलब होता है सिविल सूट की बात कर रहे हैं यहाँ पे. Anything said, done or written by any one of such person in reference to their common intention after the time. अब कहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये आफ्टर से जो बता रहा है ये टाइम इंटरवल बता रहा है यहाँ पे जो आफ्टर से हमको यहाँ पता चल रहा है ये बता रहा है कि कहाँ से लेके कहाँ तक का टाइम हमारे लिए रेलेवेंट है after the time when such intention was first entertained. कौन सा इंटेंशन की बात करें कॉन्स्पिरेसी करने का इंटेंशन सबसे पहली बार जब एंटरटेन हुआ था जब 4 लोगों ने या 2 लोगों ने बैठ के ये सोचा था कि हम मान लो कि XYZ को मारने की साजिश रचते हैं तो अगर जिस समय पे ये थॉट एंटरटेन हुआ था उसके बाद से लेकर कब तक का समय was first entertained by any one of them is a relevant factor as against each of such person believed to be so conspiring. यूं नहीं लिखा हुआ है proved to be so conspiring नहीं है क्या लिखा है यहाँ पे believed to be so conspiring. reasonable belief की बात कर रहे हैं obvious सी बात है यहाँ पे जो belief है वो कैसा होना चाहिए reasonable होना चाहिए. okay believed to be so conspiring as well as for the purpose of proving the existence of a conspiracy and for the purpose of showing that any such person was a party to it. ठीक है जिस टाइम से फर्स्ट इंटेंशन वो हुआ था एंटरटेन हुआ था उसके बाद से लेकर जब तक कॉन्स्पिरेसी नहीं हो जाती है तब तक के सारे एक्शन वेदर रिटर्न एनीथिंग डन जो भी चीज़ें होंगी वो सारी क्या होती है रेलेवेंट होती है. कौन से सेक्शन के अंदर रेलेवेंट होती है सेक्शन नंबर 10 के अंदर. इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं. इसका इलस्ट्रेशन ये दे रखा है the fact that B procured arms in Europe for the purpose of conspiracy. C collected money in Calcutta for the purpose for a like object. D persuaded person to join the conspiracy in Bombay. E published writing in Agra. F transmitted from Delhi to G at Kabul the money which C has to collect at Calcutta and the content of the letter written by H giving an account of the conspiracy. ये सारी चीज़ें क्या है relevant है ठीक है. both to prove the existence of the conspiracy ठीक है. सबसे पहले किस चीज़ के लिए relevant है किस संदर्भ में किस respect में किस subject के लिए relevant है कि सबसे पहला क्या है कि हाँ वहाँ पे conspiracy हुई थी and to prove a complicity in it कि a complicity मतलब A ने compliance किया. compliance मतलब he was a party to it although he may have been ignorant of all of them.
ए को पता नहीं है कि ये क्या है। जहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे ए का तो नाम ही नहीं आया है कि ए ने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या है, उसकी नॉलेज में थी। ठीक है, भले से वो इग्नोर कर रहा था, बट ही वॉज इन नॉलेज ऑफ इट, एंड ऑल्दो द पर्सन बाय whom they were done was stranger to him, although they may have been taken places before he joined the conspiracy or after he has left. आपने ज्वाइन करी है, जैसा कि ऐसा मान लेते हैं कि आज मान लो मंडे है और आज हम 4 लोगों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी का एक एक्ट पूरा प्लान किया है, और वेंसडे को कोई इंसान आके ज्वाइन करता है कॉन्स्पिरेसी, और पुलिस को मिलती है प्लानिंग जो मंडे को की गई थी। तो अब क्वेश्चन ये उठता है क्या जो पर्सन बाद में वेंसडे को ज्वाइन किया था, क्या उसके अगेंस्ट रेलेवेंट होगी? तो इस इलस्ट्रेशन ने क्लियर कर दिया है कि उसके अगेंस्ट भी रेलेवेंट होगी। क्यों? क्योंकि सारे स्टेटमेंट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, जब पहली बार वो आइडिया को एंटरटेन किया था से लेकर आखिरी तक, जब तक वो एक्ट नहीं हो जाता, सब रेलेवेंट होते हैं। और किसके रिस्पेक्ट में रेलेवेंट होते हैं? हर मेंबर के रिस्पेक्ट में रेलेवेंट होते हैं, भले ही से उसने पहले ज्वाइन किया, आखिरी में ज्वाइन किया, बीच में ज्वाइन किया। दैट स्टेटमेंट विल रिमेन relevant, does not matter when he has joined the conspirators. Okay, यहाँ से ये लाइन क्लियर होती है। इलस्ट्रेशंस का याद रखना, सेक्शन लिखना पड़ेगा एग्जाम में, आपको सेक्शन लिखेंगे, उसके बाद इलस्ट्रेशन लिखेंगे, उसके बाद केस लॉस लिखेंगे। ओके, अब इसके इंग्रेडिएंट देखते हैं। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। अ कॉन्स्पिरेसी इन जर्नल इज कंडक्टेड, देखिए जो सेक्शन 10 है ना, उसका पूरा ऑब्जेक्ट यही होता है कि कॉन्स्पिरेसी जो होती है ना, वो बंद दरवाजों के बीच में पीछे होती है। मतलब यू कैन नॉट डिटेक्ट, आपके एविडेंस कलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए कुछ भी छोटी, और वो भी एविडेंस सब मेंबर के अगेंस्ट इकट्ठे करना हो तो और ही मुश्किल होता है। इसलिए कोई भी छोटा सा एविडेंस अगर मिलता है, ठीक है, कि हाँ ये कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, एंड एवरीबडी हु वाज बिलीव टू बी पार्टी टू द कॉन्स्पिरेसी, उसको मान लिया जाता है कि वो एविडेंस उसके अगेंस्ट भी यूज हो सकता है। तो यहाँ यही कह रहा है, a conspiracy in general is conducted in secrecy by 2 or more persons. Such conspirator aim and purpose are to cause injury or harm to their opponents and even sometimes to the state. ठीक है, second object क्या है? In general it is difficult to prove such conspiracy due to the nature of secrecy. It is highly impossible to operate direct evidence. Evidence need to be direct, but it's very hard to obtain direct evidence in case of conspiracy. That's why section number 10 comes into picture and makes every statement relevant to every member who is believed to be a member of the conspiracy relevant. Okay. Third, therefore, to meet the situation, section 10 mitigates the degree of the burden of proof from the prosecutor. Mitigates का मतलब होता है कम करना, इसलिए वो burden of proof कम कर देता है prosecution के ऊपर से. Hence, it is sufficient under this section to make the acts of declaration of a conspirator against a co-conspirator. मतलब जरूरी नहीं है सबके अगेंस्ट प्रूफ करना, एक के अगेंस्ट प्रूफ हो गया और पता चल गया कि वो भी पार्टी था जिसके अगेंस्ट प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो वो उसके अगेंस्ट भी अपने आप वो प्रूफ हो जाएगा। ओके, ये है इसका ऑब्जेक्ट। इसके अंदर यही बोला गया है कि वंस अ रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट, ठीक है, और कि वहाँ पे कॉन्स्पिरेसी हुई है, वहाँ पे कॉमन इंटेंशन है, तो क्या कर लेते हैं, एग्जिस्टेंस है, तो मान लिया जाता है कि जो भी एविडेंस मिल रहे हैं वो सबके अगेंस्ट है। It can only be used to prove the existence of a conspiracy or that the person was a party to it. It cannot be used in favor of other person or to show that the person was not a party to it. जो एविडेंस इकट्ठे होंगे सेक्शन 10 के अंदर, वो सिर्फ ये दर्शाया जा सकता है कि he was party to, इसको अदरवाइज यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्कोप यही है कि क्रिमिनल केस के अंदर अच्छा प्रूफ प्ले करता है, कि रीजनेबल ग्राउंड अगर होते हैं इस कोर्ट के पास प्राइमा फेसी एविडेंस के तौर पे ये एक्ट करते हैं कि हाँ कि वहाँ पे एक कॉन्स्पिरेसी थी और कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट भी। इसके इंग्रेडिएंट हम लोग देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट के अंदर सबसे पहला तो क्या होता है, सेक्शन 120 का कंप्लायंस होना चाहिए, 120A का, सॉरी, ओके लेट्स इरेज इट। सेक्शन 120 का कंप्लायंस होना चाहिए सबसे पहला, तो यही है कि 120 मतलब देयर नीड टू बी अ कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी से मैंने बताया इट शुड बी एन एक्ट डन बाय 2 और मोर पर्सन, तो यहाँ पे क्या है, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, और एक क्राइम करने के लिए वो एक्ट कर रहे हो या कोई भी काम जो इलीगल
तो जो भी काम कोई लीगल और पर इलीगल मीन से किया जा रहा है, जैसे कि लाइसेंस लेना, दैट्स एन लीगल वर्क, बट अगर आप उसको कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू लेंगे तो वो क्या आता है, इलीगल हो जाता है, ठीक है। Anything said or written by any one of them should have been deemed to have been said by all of them. अगर कोई भी during the conspiracy कुछ भी बोलेगा तो मान लिया जाएगा कि सभी ने वो बात बोली है. There must be reasonable ground to believe that two or more person have conspired to commit a क्राइम. जैसा हमने क्या बोला था, रीजनेबल बिलीफ, एक बिलीफ होना चाहिए. बिलीफ कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए. तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि रीजनेबल बिलीफ होना चाहिए. प्रूफ तो होगा लेटर केस पे, पर एक रीजनेबल बिलीफ होना चाहिए, ठीक है. वेयर अ फैक्ट इज प्रूव्ड अगेंस्ट वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर अंडर दिस सेक्शन, सच प्रूव्ड फैक्ट, वर्ड क्या है, सच प्रूव्ड फैक्ट नीड टू बी प्रूव्ड, ओके, become a relevant fact as against each of the person believed to be so conspiring. इसको भी लगता है कि हाँ सबने कॉन्स्पायर किया है, तो वो प्रूव्ड फैक्ट क्या है, सबके अगेंस्ट वो यूज किया जा सकता है. यहाँ पे कौन सी थियरी लगती है, थियरी ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, कि हर एक को कॉन्स्पिरेटर जो है, मतलब उसका साथी जो है वो उसका प्रिंसिपल रहा है, अगर उसके अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट है या अगर उसने कोई भी काम किया है तो उस जो एजेंट मतलब जो उसका को कॉन्स्पिरेटर है उसके अगेंस्ट भी वो मान्य होगा. वाइकेरियस लाइबिलिटी प्रिंसिपल एजेंट का ये इसके अंदर जो सेक्शन 10 के अंदर है, प्रिंसिपल एजेंट का क्या है, थियरी है, उसके बेस के ऊपर पूरा सेक्शन 10 है, ठीक है, कि तुमने तुम्हारे अगेंस्ट जो एविडेंस एडमिसिबल है वो हमारे भी अगेंस्ट एडमिसिबल है. क्यों? क्योंकि देयर इज अ रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट बिटवीन अ कॉन्स्पिरेटर एंड अ को कॉन्स्पिरेटर, ओके. अब यहाँ पे अपन पूछते देखते हैं, समझते हैं कि क्या रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं, कब तक हम लोग ले सकते हैं वो रेलेवेंट फैक्ट कॉन्स्पिरेसी के अंदर, और कौन से नहीं हो सकते. ये इन डेप्थ में इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन आता है. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, यू नीड टू बी वेरी थोरो विथ इट, ओके. ऐसा नहीं यू नीड टू बी वेरी वेल इक्विप्ड विथ नॉलेज, कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने सिर्फ सेक्शन पढ़ा, इलस्ट्रेशन पढ़ा और 4 केस पढ़े ले गए. नहीं, आपको थोड़ा सा इसके अंदर लिखना पड़ेगा. 20 मार्क्स का 4 से 5 पेज आपको लिखने पड़ेंगे, 3 से 4 पेज. It is relevant against a co-conspirator whether it was done or written before he entered into the conspiracy or after the conspiracy. ठीक है, ये रेलेवेंट होता है कि वो पहले आया था कि बाद में आया था, उससे उनका इंटेंशन प्रूफ करने में हेल्प होती है. If the thing was said, done or written in the past, that is before such intention was entertained by any one of them, वो relevant नहीं होगा. मैंने क्या कहा था, पहले दिन जिस दिन आपने इंटेंशन को एंटरटेन किया उसके बाद चले ये कॉन्स्पिरेसी अब तक नहीं होती है, तब तक क्या नहीं होगा. वो तब तक का ही पीरियड में वो स्टेटमेंट रेलेवेंट है, उसके बाद या पहले नहीं होगा. A thing said, done or written by any one of the member of the conspirator after, यहाँ पे क्या है, दो वर्ड आप ध्यान देंगे. यहाँ पे क्या है, आफ्टर और बिफोर. पहले क्या हुआ वो भी रिलेवेंट नहीं है, बाद में क्या हुआ तो भी रिलेवेंट नहीं है. अब हम आ जाते हैं केस लॉस के ऊपर. केस लॉस क्या है, इसके अंदर क्या क्या केस लॉस है. सबसे पहला जो लैंडमार्क केस आता है वो मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर का आता है. इसके अंदर ये होता है, एक ओवरऑल केस बताती हूँ कि इसके अंदर एक मेहर लाका करके एक होती है और एक उमर शेर करके दो लोग होते हैं. देवर जो मेहर होती है वो एक असगर करके इंसान से शादी हो रखी होती है उसकी, ठीक है. उसका जो अफेयर चलता है वो उमर शेर से चलता होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ओके. तो ये जो दोनों रहते हो, मेहर लाका एंड उमर शेर, जो अपने रिस्पोंडेंट्स हैं, ठीक है. तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों कॉन्स्पिरेसी करते हैं, ठीक है, कि जिसका जो हस्बैंड है असगर, ठीक है, उसको मारने की कॉन्स्पिरेसी करते हैं और एक तीसरे इंसान को भी ये लेके आते हैं, ठीक है. तो ये कॉन्स्पिरेसी के दौरान क्या करते हैं, व्हेन दे एंटरटेन द आइडिया कि हाँ इसको मारते हैं चलो, उसके बाद वो लोग लेटर्स पे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है. वो दोनों एक दूसरे से लेटर्स में कम्युनिकेट करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि उसको जो असगर रहता है उसको मार देते हैं और जो लड़की होती है मेहर लाका उसको एग्जामिन करता है मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट के सामने वो देती है स्टेटमेंट कि हाँ ये XYZ जो पर्सन था एंड आई हैव डन दिस कॉन्स्पिरेसी टू किल माई हस्बैंड,
तो ये जो स्टेटमेंट्स वो देती है, तो अब क्वेश्चन जो उठता है, जो इशू है इस केस में, वो ये है कि रेलेवेंसी ऑफ अफोर्ड से टू एविडेंस अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस है। टू एविडेंस कौन कौन से है? पहले तो वो जो लेटर जो बरामद होते हैं उनसे, और दूसरा क्या है, दूसरे जो एविडेंस है वो क्या है, जो स्टेटमेंट बोला गया है कौन सी मेहर ने मैजिस्ट्रेट के सामने, ये दो एविडेंस की रेलेवेंसी है। तो कोर्ट ही डिसीजन देता है कि जो लेटर से दे वर मेड आफ्टर द थॉट, आफ्टर द इंटेंशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड, उसके बाद वो क्या थे, लेटर्स दिए गए थे। और जो स्टेटमेंट है, जो जो हमारी जो अक्यूज है उसने जो स्टेटमेंट दिया है, जो को अक्यूज के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट दिया है, कॉन्स्पिरेसी और होने के बाद दिया गया है। हेंस जो स्टेटमेंट है मेहर का वो एडमिसिबल नहीं है अंडर सेक्शन 10, बट द लेटर्स वर एडमिसिबल। ठीक है, और क्यों होता आप समझ में आ गया है, क्योंकि वो इंटेंशन को एंटरटेन करने के बाद दिया गया था, और ये वाले जो लेटर्स थे क्या थे, वो सॉरी जो स्टेटमेंट था वो कब दिया गया है, कॉन्स्पिरेसी और होने के बाद दिया गया, इसलिए वो रेलेवेंट नहीं किया गया था। दिस वाज द केस ऑफ मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर, एंड दिस इज अ वेरी लैंडमार्क केस। ओके, and this is a part of your curriculum also. Write it down. I am only teaching you those cases which are part of your curriculum. I am not teaching you any extra cases, so you are getting only relevant material in this course. नेक्स्ट केस जो है वो मोहम्मद खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है। इसके अंदर होती है मास एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजिव वो लेके आता है और बहुत लोग को मार देता है। उसमें से जो मोहम्मद खालिद होते हैं, कलकत्ता की बात है ये, मोहम्मद खालिद को कॉन्स्पिरेसी के चार्ज किए जाते हैं, देशद्रोह का चार्ज लगता है, बहुत सारे चार्जेस लगते हैं इसके ऊपर। टाडा जो रहती है उसके कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई होती है। ठीक है, a question is what is the issue in this case. The issue is that whether confessional statement of a co-conspirator recorded 2 days after the incidents. इसमें भी क्या करता था उमर, जो मोहम्मद खालिद जो रहता है वो कन्फेशन कर देता है मैजिस्ट्रेट के सामने कि भाई, सॉरी पुलिस के सामने करता है ये कि भैया हमने मारा है, वी XYZ person along with me has done this conspiracy for mass killing. ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि whether that statement comes under the ambit of section 10. So the answer to this question is that no, such question should not. Okay, the court observed that the basic principle which underlines section 10 is the theory of agency. Every conspiracy is an agent, every conspirator is an agent of his associate in carrying out the object of the conspiracy. Section 10, which is an exception to the general rule by permitting the statement made by one conspirator to be admissible as against the another conspirator, restricts it to the statement made during the period of agency subsisted. एजेंसी सबसिस्टेड का मतलब क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी सबसिस्टेड के बीच का ये जो पीरियड है, उसी के टाइम पे जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो रेलेवेंट होंगे, उसके पहले उसके बाद में रेलेवेंट नहीं होंगे। Once it is shown that a person is out of the conspiracy, any statement made subsequent thereto cannot be used as against the other conspirator under section 10. Once common intention cease to exist, any statement made by a former conspirator therefore cannot be regarded as one of the. इसका सीधे सीधे कि वो जो स्टेटमेंट है जो दिए गए मैजिस्ट्रेट को will not be held admissible under section 10, क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी का एक्ट करने के बाद दिए गए। बाद में जाके तो कोई भी इंसान किसी के ऊपर भी ब्लेम कर सकता है, तो आप उसको रेलेवेंट कर ही नहीं सकते हो। ओनली दो स्टेटमेंट विच हैपन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्स्पिरेसी रेलेवेंट होंगे। मोहम्मद खालिद वाला जो केस है, इसके अंदर फर्स्ट टाइम बताया गया था कि सेक्शन 10 किस बेसिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एजेंट के बेसिस के ऊपर है। तो कभी भी आया कि प्रिंसिपल एजेंट का सेक्शन 10 में जो प्रिंसिपल है वो कहाँ कौन से केस में आया था, वो मोहम्मद खालिद वाला केस था। ऑलवेज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो केस है इसके अंदर चोरी का केस है एक्चुअली ये। ठीक है, इन दिस केस रामजी एंड बद्री वर प्रोसिक्यूटेड फॉर कॉन्स्पिरेसी for bribing a police officer. An inspector of police was on his way to the police station. Both Ramji and Badri approached him and requested that they would duly reward him if he hush up the case relating to stolen ornaments recovered from Ramji house and which was under investigation. एक investigation चल रही थी चोरी के केस की। ठीक है, तो वो ये दोनों आके बोलते हैं कि आप चुप रहिएगा, पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं आप चुप रहिएगा,
एंड वी वुड बी गिविंग यू दिस मच ऑफ मनी, आप चुप रहेगा, ब्राइब देने का केस था इसका। पुलिस वाला कहता है ठीक है हम चुप रहेंगे, उस टाइम से बोल दिया। द इंस्पेक्टर टोल्ड हिम देम टू कम टू द पुलिस स्टेशन, बोला कि तुम आओ पुलिस स्टेशन। बद्री केम, एक आता है उन दोनों में से एक आता है, बद्री केम टू द पुलिस स्टेशन एंड ऑफर्ड हिम a packet of currency notes. He told the inspector that the Ramji had sent the money as a consideration for hushing up the case against him. The inspector seized the money and drew up the FIR. Conspiracy का चार्ज लगा दिया उसने। तो इसका इशू क्या बनता है? इसका इशू ये बनता है कि the only question before the court was that whether the offer of money and the accompanying statement made by the Badri were relevant against the Ramji। मतलब कि जो उसने पैसे दिए थे, क्या उसका जो एक्शन है वो दूसरे के ऊपर भी उसके ऊपर लागू होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उसने जो स्टेटमेंट दिया है कि हाँ उसने भेजा है मेरे को पैसे देने के लिए, क्या वो रेलिवेंट है सेक्शन 10 के अंदर। The court said that when both the accused approached the inspector and requested him to hush up about this case, that made clear that they both have conspired. दोनों ने बता दिया कि हम दोनों का इंटेंशन है कि भाई तुम चुप रहो। ठीक है, तो डेफिनेटली जो ब्राइब थी वो इन रेफरेंस टू क्या थी, जो इन रेफरेंस टू क्या है, कॉन्स्पिरेसी ही है। और डेफिनेटली इसीलिए वो जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो रेलेवेंट दोनों अक्यूज्ड के रिलेटेड है, क्योंकि इट वाज द कॉमन इंटेंशन ऑफ बोथ देम एंड दे शेयर्ड इट, देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी, तो हेंस ये क्या हो जाएंगे, स्टेटमेंट रेलेवेंट है। ओके, नाउ द नेक्स्ट, देयर आर मेनी क्वेश्चन, आई नो यू मस्ट बी टायरिंग गाइस, बट ये सेक्शन, ये जितने भी केसेस है पढ़ना जरूरी है, बिकॉज दिस forms part of your curriculum and they might ask any of this cases as problem based question and you might get very tricked। ठीक है, तो इसलिए इनको सेक्शन, इनको थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर भी जो रहता है कि डिस्पोज करते हैं, दो लोग रहते हैं इसके अंदर, एसके जैन और जेके जैन। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पैसा, ये दोनों जैन ब्रदर्स होते हैं, ये लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ये पैसा इधर उधर करते हैं। ठीक है, इन दिस केस इट वाज एलिज्ड दैट ड्यूरिंग द ईयर 1888 से 1988 से लेके 91 तक जो जैन्स है, दोनों जो अक्यूज्ड है, जेन्स ब्रदर्स, ओके, एंटर्ड इनटू कॉन्स्पिरेसी अमंग देमसेल्फ, कि दोनों ने कर ली कि ठीक है जो भी हमको अनअकाउंटेड मनी मिलेगा, मतलब जो ब्लैक मनी मिलेगा, to disperse the same to their companies, friends, close relative and other person including public servant, political leaders of India। वो डिस्पर्स कर देंगे इधर उधर, फ्रेंड्स को देंगे, इसको दे देंगे कि बाद में लेंगे तुमसे, ये कर देंगे। ठीक है, इन पर्सनस ऑफ द सेट कॉन्स्पिरेसी एसके जैन लॉबिड with various public servants and government organization for to pursue them to award contract to different foreign bidder, भी आएगा यहाँ पे ना, okay, with the motive of getting an illegal kickback through Havana channel from them. An account of receipt was maintained by Jackie Jan in the diaries of in the file recovered। इसमें क्या होता है, एक जो भाई है वो क्या कर रहा है, पैसे उधर करने के लिए कन्विंस कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, काउंटिंग कर रहा है, पैसे जमा रहा है कि किसको कितना पैसा दिया मैं देखता हूँ। इन्होंने दोनों ने कॉन्स्पिरेसी करी है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें इशू क्या आया, इशू ये आया कि वेदर द एंट्रीज इन द डायरी, क्योंकि एक तो एंट्री कर रहा था एक ब्रदर, तो in the diary of a person showing the name of a certain person to whom the payment was supposed to have been made were not sufficient to create a reasonable ground to believe that they were involved in a conspiracy। भाई कोई सिर्फ अकाउंट रख रहा है, इसका मतलब ये है क्या कि वो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है? द क्वेश्चन वाज दैट। ओके, तो डिसीजन क्या था, सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं सारे ऑल दो। ठीक है, डिसीजन ये था, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द ordinarily a person cannot be made responsible for the acts of other unless they have instigated by him or done with his knowledge or consent। Section 10 provides an exception to this rule। जरूरी नहीं कंसेंट दे रखी है या है, पता नहीं किसके लिए काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, आपको पता है कॉमन इंटेंशन आपको नॉलेज में, तो क्या हो जाएगा वो, आप सेक्शन 10 के अंदर लायबल हो जाओगे।
ठीक है, सेक्शन 10 provides an exception to this rule by laying down that an overt act committed by one of the conspirator is sufficient. overt act मतलब कोई भी एक्शन करना, सिर्फ इंटेंशन जो होता है वो क्या, इंटेंशन जो होता है वो, इंटेंशन को आप ओवर्ट एक्ट नहीं करते, इंटेंशन इज एन ऑपोजिट ऑफ ओवर्ट एक्ट. ओवर्ट एक्ट मतलब कुछ भी फिजिकल एक्ट करना है इन रेफरेंस टू द कॉन्स्पिरेसी. ठीक है, वो क्या होता है, सफिशिएंट होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी टू make it the act of all, but the such concept of agency can be availed of only after the court is satisfied that there is a reasonable ground that there exists a conspiracy. Okay, it was held that diary does not amount to an admission of conspiracy. डायरी को इस केस के अंदर नहीं माना गया था कि इट वाज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी बिकॉज देयर वाज नो रीजनेबल बिलीफ कि जो दूसरा बताता है एसके जैन वाज आल्सो अ कॉन्स्पिरेटर. ओके, इसमें सिंगल चार्ज लगा था. अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ. थोड़ा सा डिफरेंस आता है क्योंकि इंग्लिश लॉ जो होता है वो ओवर्ट एक्ट की बात करता है. देख लेते हैं एक बार धीरे धीरे करके. फर्स्ट द एक्ट मस्ट हैव बीन डन, और आप सोच रहे लिखने की क्या जरूरत है, कि लिखने की जरूरत है बिकॉज 20 मार्क क्वेश्चन. You have to write, even थोड़ा सा लिखो but you have to make it a point कि हाँ हमको यहाँ तक पता है, then only you are going to get good marks. Okay, this acts must have been done or the declaration must have been made in execution or furtherance of the common intention. यहाँ पे क्या है, the acts and declaration made by the conspirator about the common intention are relevant. यहाँ पे common object की बात करते हैं इंग्लिश लॉ में, और यहाँ पे कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं. ये दोनों में डिफरेंस है. सेकेंड क्या होता है, इफ द एक्ट्स एंड डिक्लेरेशन वर डन और मेड आफ्टर द पर्सन अगेंस्ट हुम द एविडेंस इज टू बी गिवन एंड द सर्व्ड इज कनेक्शन विद द कॉन्स्पिरेसी दे विल नॉट बी रेलेवेंट. ठीक है, उसने क्या करा कि, ठीक है, जो पर्सन जो है एक्शन ऐसा किया गया है कि इसको पता तो था कि वहां पे कॉन्स्पिरेसी चल रही, पर उसने बोला कि मेरे को नहीं रहना है, इसका पार्ट वो चला गया, वॉकआउट कर गया. बट वॉट एवर द एक्शन दैट ही हैज डन, इंडियन लॉ में तो बाद में जो भी जानने वाले पहचानने वाले आगे जो भी काम करेंगे उसके लिए वो भी लाइबल होगा, भले से वॉकआउट कर गया है. पर इंग्लिश लॉ में ऐसा नहीं है, वॉकआउट कर गया तो आप उसको नहीं लाइबल करोगे. ठीक है, एक्ट्स डन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी आर आल्सो रेलेवेंट. इरेलेवेंट बहुत कम केसेस में होते हैं ऑल्दो. ठीक है, तो इसीलिए कॉन्स्पिरेसी के टर्मिनेशन के बाद रेलेवेंट नहीं होते हैं, और ऑल्दो नॉट आएगा यहाँ पे. ठीक है, जस्ट मेक इट पॉइंट कि नॉट. अब हम लोग PYQ देखते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन है. इसके अंदर ये बोला रहे हैं कि 3 रेवोल्यूशनरी रिबेल्स हैं, ABC, उन्होंने एक SHO को शॉट कर दिया है पुलिस, और एक C है. यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन पढ़ना है आपको. अगर आप जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ये क्या कहते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड, बहुत ध्यान से पढ़ें. जैसे कि ये जो पूरा क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो एक ही लाइन में, सी ऑन सीइंग अ फेलो ट्रैवलर. डी, यहाँ पे डी की बात करें, फेलो ट्रैवलर है, बस साथ में चल रहा है वो, उसको कुछ पता नहीं है कि वो उसका इंटेंशन है, कॉमन इंटेंशन है, क्या है. इट्स जस्ट अ मियर फेलो ट्रैवलर. ठीक है, तो आप मियर फेलो ट्रैवलर को आप कॉमन इंटेंशन बता ही नहीं सकते हो कि उसके पास कॉमन इंटेंशन था. इवन यू हैव आस्क्ड हिम, इवन ही डज समथिंग. ठीक है, तो आप कॉमन इंटेंशन प्रूव कर ही नहीं सकते. कॉमन इंटेंशन नहीं प्रूव होगा तो क्या नहीं प्रूव होगा, आपका कॉन्स्पिरेसी प्रूव नहीं होगी. ठीक है, इसको आगे पढ़ते हैं. Common fellow traveler shouted to him loudly, "We have shot the SHO of this police station. Now get pamphlets published to this effect and distribute them in the public." ठीक है, उसने कहा कि हमने इसको मार दिया है, तुम ये पैम्पलेट्स लो और डिस्ट्रीब्यूट कर दो. लेटर व्हेन, और सब चारों को ले गए, ABCD को लेके चले जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट सेडिशन के ऊपर और ये सब ओवरथ्रोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म और डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के ऊपर वो लेके जाते हैं. क्रिमिनल चार्ज लगता है ABCD पे. जो ऊपर का स्टेटमेंट है C का, D बोलता है मुझे तो बोला गया था, मेरे को तो पता भी नहीं था क्या हो रहा है, देयर वाज नो कॉमन इंटेंशन. ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर यही है कि वो क्या था, एक फेलो था, इसीलिए उसका क्या नहीं था, इंटेंशन नहीं था. हेंस उसके जो स्टेटमेंट है उसके अगेंस्ट रेलेवेंट नहीं होंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन है हम लोग सेक्शन 30 के अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है, अभी नहीं है, ये यहाँ पे गलती से आ गया.
हाँ, इसके अंदर इसके अंदर भी यही होता है कि on 9th October 1930, a police officer and his wife are wounded by a revolver shots near the police station at Lamington Road in Bombay. These shots were fired by some person who were in motor car which was standing on the opposite side of the road. As a result of the investigation into the incident, several persons were arrested and placed on trial. अब इसका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं बताती हूँ. उसके अंदर ये होता है कि several persons were arrested. उनमें से एक स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने आके बोलता है कि yes, this person has committed the conspiracy, but again इसके अंदर ये relevant नहीं होगा because it was the statement was given after the conspiracy has ended. ठीक है. जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी यही बात कर रहा है. एविडेंस वाज सॉट टू बी गिवन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ एन एब्सकॉन्डिंग अक्यूज टू द अप्रूवर. अप्रूवर कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट विटनेस टर्न हो जाते हैं, कि जो बोल देते हैं ठीक है, जो अक्यूज होते हैं पर वो गवर्नमेंट विटनेस टर्न हो जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ मैं सब सच 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 बताऊंगा, एवरीथिंग वुड बी ट्रू टू माई नॉलेज एंड आई विल हेल्प यू आउट टू सॉल्व दिस केस. ठीक है, तो इसीलिए उसको कहते हैं अप्रूवर कहते हैं. ठीक है, अक्यूज टू द अप्रूवर that the conspirators had shot a police officer, that a pamphlet should be written and distributed to start the propaganda in the furtherance of the object. Decide, इसके अंदर अगेन अप्रूवर बनने के बाद जो होते हैं वो आफ्टर द कॉन्स्पिरेसी बोले गए स्टेटमेंट है. मोहम्मद खालिद का केस मान लो आप, उसके बाद मिर्जा अकबर वाला केस, ये सारे केसेस को आप साइड करके इन सारे क्वेश्चन के आंसर इजीली कर सकते हैं. Okay, so that's it for this section number 10. This is one of the most important. Please do read the case laws and the notes that I have given you. Okay, that would be the end of the class. Thank you and have a nice day and keep learning. Thank you.